Hello, Assalamu alaikum, my dear students. In the last two video, we discussed about the definitions of active and passive voice. We also discussed about some rules. So again today I repeat, what is the rules when we change to active voice into the passive voice. The first rule is active voice object become the passive voice subject. Second thing, we use the to be form related active voice tense verb. We also discuss about the one box if the active voice in a present tense, the which tense to be form is. If the active voice in a past tense, the which tense to be form we use here. And if the active voice in a future tense, the which tense to be form we use in a passive voice. Means if the active voice in a present tense, in a passive voice we use the to be form of present tense, means am is are. We also discuss about if the active voice in a past tense, in a passive voice we use the to be form of past tense was and were. If the active voice in a future tense means will, shall, can, in a passive voice we also use will, shall, can, and also will, shall, can plus बी, यानी कि उसके साथ बी हमें कंपलसरी यूज करना है, राइट. एंड थर्ड रूल्स के वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ एक्टिव वॉइस वर्ब, यानी कि एक्टिव वॉइस वर्ब जो भी हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस, उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल कंपलसरी लिखना है. ओके. एंड लेसन के एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट become the passive voice object, and before we use by by. So here we discuss about 2 points remain. First of all, some imperative sentence can be changed into the passive voice, यानी कि जहाँ कोई subject ना हो. So when in this sentence can use the subject means if the active voice in an imperative sentence. What is the mean by imperative sentence? How can we say that this is the imperative sentence? In which sentence which sentence express the command, order या request. ऐसा sentence जहाँ उसमें order दिया गया हो या कुछ कमांड किया गया हो या रिक्वेस्ट की गई हो, उससे बोलते हैं imperative sentence. यानी कि जब एक्टिव वॉइस इन imperative sentence में हो तो क्या चेंज होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें कि ब्रिंग डाउन द कर्टेन्स फॉर मैंडे. क्या है, तो पहले हमें वर्ड फाइंड करना है. तो वर्ड कहाँ है, ब्रिंग इज अ वर्ब हियर, नॉट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. तो पैसिव वॉइस स्टार्ट विद द लेट. क्या होगा, कब शुरू होगा पैसिव वॉइस लेट से, जब एक्टिव वॉइस इन अ इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस का हो तो उसकी शुरुआत किससे होगा, लेट. फिर लिखना है द कर्टेन्स. आफ्टर द कर्टेन्स हमें लिखना है बी. क्या लिखना है, बी. यहाँ हमें वॉज, वेर, विल, सेल, कैन, एमिज आर यूज नहीं करना है. फिर ब्रिंग का क्या लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल, ब्रॉट डाउन फॉर mending. So again I repeat, when the active voice in a imperative sentences and when we change into the passive voice, the first of all passive voice start with let. After we use the short tense and before the past participle verb we use compulsory be, brought down for the mending. Second thing, don't spill a drop of milk. हमें मिल्क को स्पाइल नहीं करना है, एक रिक्वेस्ट है, कमांड है, जो समझो. अब दैट इज द सेम थिंग, स्टार्ट विथ लेट. नॉट है, हमें लिखना है नॉट. क्या ड्रॉप नहीं करना है, क्या ड्रॉप ऑफ मिल्क, ठीक है, और ड्रॉप ऑफ मिल्क. बी तो बी, स्पाइल का पास्ट पार्टिसिपल स्पाइल. तो दिस रूल्स यू ऑल्सो रिमेंबर एंड फिट इन योर माइंड. सो व्हेन द एक्टिव वॉइस in our imperative sentences and when we change into a passive voice, the first of all passive voice start with the let. Okay. Number 6, the interrogative sentence with transitive verb that have object can be changed into the passive voice. जब active voice क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव सेंस में हो, यानी कि विच sentence at the end use the question mark, we can say that this is the interrogative sentences. जब हम उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले क्या करना है, किससे शुरुआत होता है, देखिए वाई, जो WH क्वेश्चन है कि हु, व्हाट, वेयर, वाई, तो सब उसकी शुरुआत हो तो पहले हमें वही लिखना है. क्या लिखना है,
वाई, बराबर। डीड, तो डीड कौन से टेंस का है कि पास्ट टेंस, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है वॉज। हिम इज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आएगा ही अरेस्टेड। यहाँ आप बाय द पुलिस लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, और नहीं लिखोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही है कि वाई वॉज ही अरेस्टेड, उससे क्यों अरेस्टेड किया गया था। ओके, तो द सेकंड थिंग, आर यू गोइंग टू गिव हर अ पास एक्टिव वॉइस, तो पहले आर यू मीन्स विल शी बी गिवन अ पास, सेकंड विल अ पास be given her. So there is the two rules remaining. So today we discuss about, that is the you fit in your mind and write down in your notebook. A changing passive voice into the active voice. अगर passive voice है उसको active voice में convert करना है हमें, जो पहले rules था वो अलग हो जाएगा। Next example देखो, she was given a gift by Ashok, राइट, ये पैसिव वॉइस है, तो क्या आएगा कि एक्टिव वॉइस ऑब्जेक्ट बिकम द पैसिव वॉइस सब्जेक्ट है क्या अशोक। रिमूव द हेल्पिंग वर्ब, तो रिमूव किया हमने गिवन का मेन वर्ब गिव, यहाँ गिव क्यों किया क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, बराबर, तो यहाँ गिव। अगर इज होता तो हमें यहाँ लिख सकते गिव, ओके गिव। सी, ठीक है, हर अ गिफ्ट, ठीक है। व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस, कि द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द एक्शन इज प्लेस एज द सब्जेक्ट, बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ बिकम द सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। नंबर 2, द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट, द वर्ब टेक द टेंसेस इंडिकेट बाय द फॉर्म टू बी, यानी कि यहाँ जो टू बी फॉर्म है उसके हिसाब से हमें वर्ड लिखना है। पास्ट टेंस में है इसलिए हमने यहाँ गिव लिखा, अगर इज होता तो हम यहाँ गिव लिखते। बाय इज ओमिटेड, यानी कि बाय निकाल लेना है, देखो यहाँ निकाल लिया है। द सब्जेक्ट बिकम द ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कि स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल आपको दिया गया है। चिल्ड्रन वेर शोन अ नाइस पिक्चर बाय द टीचर, तो पहला है ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट द टीचर, वर्ड निकाल लेना है, पास्ट टेंस है तो शोन का क्या होगा शोन अ नाइस पिक्चर टू चिल्ड्रन। सेकंड, ही वॉज नॉट कॉल्ड बाय द प्रिंसिपल, देखिए द प्रिंसिपल डिड नॉट कॉल हिम, क्यों यहाँ डिड यूज किया गया है क्योंकि यहाँ वॉज लिखा है इसलिए, और नेगेटिव सेंस में है। ओके, अ पिक्चर वॉज ड्रोन बाय स्मिता, देखिए स्मिता ड्रू अ पिक्चर। ऑल द एग्जाम्पल हियर, सो वॉट एवर यू लर्न नंबर 5, 6 and all things you write down in your notebook. So we discuss about the exercise. Listen, the exercise number 1. This exercise you write down by oneself, okay, and also you write down answer by oneself. After the next day, I send the answer. But first of all, you write down by oneself, okay. Number 1. Tagore wrote our national anthem. So what is the first of all? First of all, we find the subject, verb, and object. Here we find out first of all Tagore. The Tagore is a subject. Wrote is a verb and our national anthem is a object. Okay. Second thing, in which tense active voice verb, wrote is a past tense verb, बराबर, okay, past tense verb. तो first of all what is the rules के active voice object become the passive voice subject. तो हमें पहले क्या लिखना है, our national anthem, राइट, यहाँ जगह यहाँ सॉरी प्लेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ कि आवर नेशनल एंथेम। सेकंड है कि इफ द एक्टिव वॉइस वर्ब इन अ पास्ट टेंस, इन अ पैसिव वॉइस वी यूज द टू बी फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, कि आवर नेशनल एंथेम वॉज। नंबर 3 के राइट द पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस वर्ब, तो रॉट का पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा रिटर्न, राइट, रिटर्न। एंड एक्टिव वॉइस ऑफ सब्जेक्ट बिकम द passive voice object Tagore, and before we use by. So this is your answer. Okay, that is the same things all the number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 and 15, ये सब 15 आपको वो रूल्स के हिसाब से और जो यहाँ ये बॉक्स दिया है ना इसी हिसाब से आपको ये आंसर अपने आप
फाइंड करना है और लिखना है. Okay, and after the one days I send the answer of this exercise, so you also check by own self. So now our first topic was finished here. Okay, so next topic we learn in our next video. Okay, thank you.